this exercise, we will be doing miscellaneous of chapter 8. Here the first question is, we have to find the area under the given curves and the lines. The curve is y is equals to x square and the line x is equals to 1 and the line x is equals to 2 and x-axis. This is the first part of first question. Here y is equals to x square is simply representing a parabola which is upward parabola. This parabola, it is basically representing x square is equals to y and the line x is equals to 1. X is equals to 1, suppose is this line. This line x is equals to 1 and the line x is equals to 2, suppose this line x is equals to 2 and the x-axis. This we have to find out. So that means you have to find out the area enclosed between these lines, curves and the x-axis. This area we have to find out. So suppose we know this point is 1, 0. This point is 2, 0. So to find out this area, हमें पता है कि ये जो एरिया है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है. हमें पहले तो ये देखना है. ये एरिया शुरू हो रहा है 1 से और एंड हो रहा है 2 पर. ठीक है, 1 से शुरू हुआ और 2 पर खत्म हो गया ये वाला एरिया. और ये कर्व के नीचे है. अगर हम देखें कर्व के नीचे का ही पूरा एरिया है ये. तो कर्व की इक्वेशन अगर हम ले लेते हैं x square into dx, so we will find out this area and we will have the answer. अब integration of x square is x power 3 upon में 3 and the limits 1 to 2. If I put x is equals to 2 here, this value is 8, then minus. If I put x is equals to 1, so it is 8 minus 1 upon में 3. So answer will be 7 by 3 square units. In question number 2, we have to find the area between the curves y is equals to x and y is equals to x square. Y is equals to x square is a parabola. So हमने यहाँ पे लिया and this is the upward parabola, this. So this is the parabola y is equals to x square and the line y is equals to x. Y is equals to x is this line. So we have to find out the area enclosed between the curve and the line. So हमने ये देख लिया. बस हमें समझना यही है कि उसने कहा कि लाइन और कर्व, ये लाइन है और ये कर्व है, इन दोनों के बीच में तो यही एरिया है ना. So this area we have to find out here. अब हमने ये सीखा है कि जहां पे कर्व्स मीट करते हैं वहां से हम x एक्सिस या y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं. And to find the area, this point, suppose A is very important. So to find the point A, हम इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं. छोटी क्लासेस में 10th में हमने इक्वेट करना सीखा है, बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं. y is equals to x को मैं इस इक्वेशन में डाल देती हूँ. So x is equals to x square. This implies x square minus x is equals to 0. And this implies x into x minus 1 is equals to 0. And this implies x is equals to 0 और 1. x की दो वैल्यूज आ गई, एक 0 आ गई, एक 1 आ गई. तो जो ये पॉइंट है ये 1, 0 हो गया. ठीक है, तो अगर x 0 है तो y भी 0 है, अगर x 1 है तो y भी 1 है. तो डेफिनेटली ये पॉइंट 1, 1 हो जाएगी. So to find the required area, हमें required area find out करना है. उसके लिए जो हमारी लिमिट है वो 0 से 1 हो गई. एंड अगर मैं लाइन से इक्वेशन लेती हूँ, ठीक है, अगर हमने लाइन की इक्वेशन ली तो लाइन के नीचे इस लिमिट के अंदर जितना भी एरिया है ग्रीन में, ये सारा एरिया आ जाएगा. सो लाइन की इक्वेशन y is equals to x dx है, पूरा एरिया आ गया. बट इसमें कुछ ऐसा पोर्शन है जो हमें नहीं चाहिए, हमें वो वाला पोर्शन रिक्वायर्ड ही नहीं है. सो ऐसा पोर्शन कौन सा है? ये वाला पोर्शन है जो हमें नहीं चाहिए. दिस पोर्शन विच इज बिलो द कर्व, ये वाला पोर्शन, ब्राउन वाला पोर्शन हमें नहीं चाहिए. तो हम इस पोर्शन को माइनस करेंगे, जो हमें नहीं चाहिए हम उसको माइनस कर देंगे. अब माइनस तो करेंगे, ये पोर्शन शुरू कहाँ से हो रहा है? अगेन 0 से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, 0 से शुरू हो रहा है, 1 पे खत्म हो रहा है. ये ओरिजिन है ना, 0 से स्टार्ट हो रहा है. अगर हम अब कर्व से इक्वेशन लेते हैं तो कर्व के नीचे का पूरा एरिया आ जाएगा. मान लिया हमने कर्व से इक्वेशन ली तो कर्व के नीचे का पूरा एरिया इसमें आ जाएगा. सो कर्व से इक्वेशन हो जाएगी y is equals to x square into dx. ऐसे
अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, लिमिट हो जाएगी 0 से 1, देन माइनस x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3, लिमिट हो जाएगी 0 से 1। ठीक है, अब अगर हम x की जगह 1 रख दें तो 1² माइनस 0 रखें 0/2, माइनस फिर 1 रख दें 1³ माइनस 0/3। 1²/2 इज 1/2 माइनस 1/3। अगर हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं तो इट विल बी 3 - 2, सो आंसर विल बी 1/6 स्क्वायर यूनिट। Here we have to find out the area enclosed by these 4 curves. So first y is equals to x², यही वाला पैराबोला होगा, ये तो बिल्कुल क्लियर है। y is equals to 4x², ये पैराबोला हो गया। x is equals to 0 का मतलब होता है y एक्सिस, दिस लाइन इज x is equals to 0। y is equals to 1 मतलब दिस लाइन इज y is equals to 1। y is equals to 4 मतलब दिस लाइन। So you have to find out the area enclosed between the line y is equals to 1, y is equals to 4. अब उसने क्या बोला, y is equals to 1 is this line, y is equals to 4 means this line, y axis means this line, and the curve means this line. So इसके बीच में जो भी area enclosed है, he wants us to find out this area. So सबसे पहले तो यही अंडरस्टैंड करना है, फिर हम इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे a और b के। a के कोऑर्डिनेट 0 और 1 हो गए, b के कोऑर्डिनेट 0 और 4 हो गए। अब हमें रिक्वायर्ड एरिया निकालना। अब एरिया शुरू कहां से हो रहा है, 1 से, एंड कहां पे हो रहा है, 4 पर हो रहा है, तो लिमिट इज 1 to 4। लेकिन ये y एक्सिस है, यहाँ पर ये चीज का ध्यान देना है, दिस इज y एक्सिस, और जब y एक्सिस होगा तो वैल्यू हमारी x की पुट की जाएगी। सो x की वैल्यू हो जाएगी √y/, बिकॉज x² की वैल्यू है y/4, तो x की वैल्यू हो जाएगी √y/4 इनटू में dy। सो हियर अब हम क्या करेंगे, 4 को बाहर ले लेंगे, दिस इज 1/2 and this value is 1 to 4 and this is √y into dy। now √y, y power half, तो y power half plus 1 ये हो जाएगा 3/2, और मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 से, और लिमिट हो जाएगी 1 से 4। ठीक है, 1 से 4 लिमिट हो जाएगी। so this value is 1/3। अब हम y की जगह पुट कर देंगे 4, so this is 4 power 3/2 minus 1 power 3/2, so this value is 1/3। 4 power 3/2, 4 को लिख सकते हैं 2 power 2 into 3/2 ऐसे, माइनस 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, this 2 and this 2 cancel, so this value is 1/3 into 2 power 3 means 8 minus 1, so answer will be 7/3 square units। Here we have the graph y is equals to modulus of x plus 3, y is equals to modulus of x plus 3 we have here। इसका ग्राफ अगर हम बनाएं तो मॉडुलस का ग्राफ बनाना, इट इज ऑलवेज सिंपल, वेरी सिंपल। इट इज मॉडुलस मीन्स x plus 3 को आप 0 पुट कर दीजिए। अगर आप x plus 3 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपको जो x की वैल्यू मिलेगी वो -3 मिलेगी। इसका मतलब -3 सपोज यहाँ पर हो गया, ये पॉइंट हो गया -3, 0। ये पॉइंट समझ आ गया होगा कैसे निकाला। अब इस पॉइंट से हमने लाइंस बनानी है, किस तरफ है, किस तरफ। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y is equals to modulus of x plus 3, where this side represents y is equals to positive x plus 3 and this side represents y is equals to negative x plus 3। ठीक है, एक तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसने कहा कि एरिया निकालिए, लेकिन एरिया वो -6 से 0 के बीच में बोल रहा है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन सच अ केस, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब सपोज -6 ये पॉइंट है, सो ही इज आस्किंग अस टू फाइंड आउट द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन -6 to 0 ये। ठीक है, एंड मॉडुलस x plus 3। सो जहां पे पॉइंट है वहां से हमने लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, और ये लाइन तो पहले से ही ड्रॉन है। सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस मच एरिया, दिस एरिया एंड दिस एरिया। अब एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है इस क्वेश्चन में, वो इंटरेस्टिंग क्या है, देखो ये डिस्टेंस 3 है और ये डिस्टेंस भी 3 है, यानी अगर आप एक एरिया निकाल लो, दूसरा एरिया उसका डबल, जो ये एरिया 1 है और जो एरिया 2 है, बोथ आर सेम,
और निकालना दोनों 1 + 2 निकालना है. सो रिक्वायर्ड एरिया आपको फाइंड आउट करना है. रिक्वायर्ड एरिया is twice of area 1 because area 1 is equals to area 2. This we know because same है, symmetrical figure है, तो area 1 is equals to area 2. Twice of area 1. area 1 start कहाँ से हो रहा है? -3 से start हो रहा है, end 0 पे हो रहा है. ऐसी है ना, -3 से start हुआ, 0 पर end हो गया. And equation है positive x + 3. So it is x + 3 into में dx. ये हो गया. अब ये 2 आपका बाहर हो गया. अब x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² / 2 और लिमिट हो जाएगी -3 to 0. ये हो गया. फिर +3. अब ये x हो गया, इसकी लिमिट हो गई -3 to 0. ऐसे. अब इसको सॉल्व करना, तो सॉल्व तो कोई भी कर लेगा. आपको बस ये समझ में आना चाहिए, इस स्टेप तक पहुंचना आना चाहिए, कैसे पहुंचे हम इस स्टेप पर. अब देखो 2 कंप्लीटली बाहर है. x की जगह 0 रखेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा. फिर माइनस रखेंगे, फिर x की जगह -3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा. इट इज -9/2 +3. x की जगह 0 रखेंगे तो वो 0 हो गया. फिर माइनस, फिर -3 रखा. ये टर्म आ गई आपकी. सो इट इज 2 अंदर हो जाएगा -9/2 और दिस इज 9 + 9. सो दिस इज 2. 18 - 9 is 9/2. 2 and 2 cancel. So ये हो जाएगा 9 square unit. Now question number 5. You have to find the area bounded by the curve y is equals to sin of x. Y is equals to sin of x. And between x is equals to 0 to pi है. Between x is equal to 0 to 2 pi. So this is what you have to find out. Here the curve. Sin x का जो ग्राफ होता है वो ऐसे जाता है. एंड जो इंटरवल होता है वो पाई का इंटरवल होता है. 0 देन पाई देन 2 पाई देन 3 पाई एंड सो ऑन. ठीक है. अब आपको एरिया इनक्लोज बिटवीन 0 to 2 पाई निकालना है. दैट मींस दिस एरिया यू आर सपोज टू फाइंड आउट, दिस एरिया यू आर सपोज टू फाइंड आउट. इतना एरिया आपको निकालना है. अब ये तो आपको पता चल ही गया कि फिगर्स सिमेट्रिकल होते हैं. तो जो ये वाला एरिया है, इसको सपोज मैं 1 बोलती हूँ, और जो ये वाला एरिया है ये भी एरिया 1 है, सेम है. सो रिक्वायर्ड एरिया इज ट्वाइस ऑफ एरिया 1. फर्स्ट थिंग. देन 2, area 1 starting from 0 ending at pi. It is starting from 0 and ending at pi. So it will be sin x dx. Sin of x into में dx. So यहाँ पर जब हमारी लिमिट 0 से पाई है तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं. 0 से पाई के बीच में एक वैल्यू आती है π/2. ठीक. Because now after this it is twice. Integration of sin x is minus cos x. So it is minus cos x and the limit is 0 to pi. So this value is -2. If I put x is equals to pi cos pi minus cos 0. Cos 0 is 1 and cos pi is -1. So -1 -1. So this value is 4 square unit. That is the answer. We have to find the area enclosed between the parabola y² is equals to 4ax and the line y is equals to mx. So very interesting question here. Parabola y² is equals to 4ax, ये वाला हो गया. y² is equals to 4ax. And the line, हमेशा y is equals to x वाली जो फॉर्म होती है वो हमेशा ओरिजिन से पास होती है एंड लाइन ऐसे जाती है. तो उसने क्लियर बोला area enclosed between line and the curve. That means this area we have to find out. And to find out this area, this thing is simple. जहाँ curves meet कर रहे हैं वहां से हम perpendicular डाल देते हैं. Suppose the point A. अब पिछले क्वेश्चंस में हम इतना तो सीख चुके हैं कि जहां से परपेंडिकुलर डालते हैं हमें कोऑर्डिनेट ऑफ A चाहिए. तो y is equals to mx हम पुट कर देते हैं. तो ये हो जाएगा, इसमें y is equals to mx को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा m² x² is equals to 4ax. वैसे तो क्वाड्रेटिक है, 2 वैल्यूज आनी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ से x को काट रही हूँ क्योंकि एक x तो 0 ही आएगा तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है. तो x की वैल्यू सिंपल आ गई 4a/n². और दूसरी वैल्यू आ जाएगी x is equals to 0. तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया 4a/n², 0. अगर अब हमें रिक्वायर्ड एरिया निकालना है तो थिंग इज वेरी सिंपल. द एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंडिंग एट 4a
अपॉन n स्क्वायर। एंड अगर मैं अब कर्व से लेती हूँ इक्वेशन, तो कर्व से नीचे मुझे लाइन तक सारा एरिया मिल जाएगा। अगर मैंने कर्व से इक्वेशन ली तो कर्व से नीचे मुझे लाइन तक सारा एरिया मिल जाएगा। अब कर्व की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो हम ये ले लेंगे अंडर रूट 4ax y की वैल्यू। बट अब इसमें मुझे ये वाला एरिया, जो नीचे वाला एरिया, जो लाइन के नीचे वाला एरिया है, दिस एरिया इज नॉट रिक्वायर्ड, सो रेड एरिया हमें माइनस करना है। So to find out this area, this is again starting from 0 ending at 4a upon n square. अब हम लाइन से इक्वेशन लेंगे। जब हम लाइन से इक्वेशन लेंगे y is equals to mx into dx, so we will get the required area in this way. So यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, this is 0 to 4a upon n square. अब रूट 4a will be outside, है ना, रूट 4a तो कांस्टेंट ही है, और ये रूट x हो जाएगा dx। फिर माइनस 0 to 4a अपॉन n स्क्वायर हो गया, एंड दिस इज mx, तो m इंटू x इंटू dx हो गया। रूट 4a को हमने बाहर ले लिया, और रूट x का इंटीग्रेशन x पावर 1/2 प्लस 1 इज 3/2 इंटू 2/3, एंड लिमिट है 0 to 4a अपॉन n स्क्वायर। minus m is outside, integration of x is x square upon 2, limit has 0 to 4a upon n square. So this value is 2 upon 3 root 4a, मतलब 2 root a, और x की जगह हम रख देते हैं 4a upon n square, और इसकी पावर है 3/2 ऐसे। उसके बाद है माइनस m अपॉन 2, x की जगह है 4a अपॉन n स्क्वायर, और इसका स्क्वायर है, ठीक है। सो अब हमें इसको बस सिंपली सॉल्व कर देना है और कुछ भी नहीं करना। सो दिस वैल्यू इज 4 रूट a अपॉन में 3। अब जो ये स्क्वायर है, तो दिस इज 2 रूट a अपॉन m, इसका होल स्क्वायर है, इनटू में 3/2 है, तो अब ये और ये तो कैंसिल हो गया। फिर माइनस, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर m अपॉन 2m पावर 4, ये वैल्यू हो गई। अगर हम इसको देखें तो ये कट जाएगा, और कट के ये m क्यूब बन जाएगा, ये कट के m क्यूब बन गया, और ये 8 हो गया। तो अगर हम इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4 रूट a अपॉन 3, 4 रूट a अपॉन में 3, और 2 का क्यूब है तो ये 8 हो जाएगा, और रूट a का क्यूब है तो a रूट a हो जाएगा, अपॉन में m क्यूब हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 8a स्क्वायर अपॉन m क्यूब। तो अब यहाँ पर ये बन जाएगा 24 और 32a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब माइनस 8a स्क्वायर अपॉन m क्यूब। अगर अब हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं, अगर हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, एलसीएम 3m क्यूब आ गया, ठीक है। 32a स्क्वायर माइनस 24a स्क्वायर। अब 32 माइनस 24 इज 8a स्क्वायर, 8a square upon 3m cube. That is the answer in square units. In this question, area enclosed by the parabola 4y is equals to 3x square, and the line 2y is equals to 3x plus 12. 4y is equals to 3x square is this parabola. This is this parabola 4y is equals to 3x square, and the line 2y is equals to। अब इसका प्रॉब्लम बच्चों को रहता है कि कहाँ से पास होगी, कैसी लाइन होगी, तो इसका मैं आपको बेस्ट ट्रिक बताती हूँ। कोई भी लाइन अगर आपके पास हो तो एक बार उसमें x को 0 पुट कर दो,
अगर मैं इसमें x को 0 पुट कर देती हूँ तो मेरे पास 2y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा एंड y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। दैट मीन्स एक पॉइंट हो गया हमारे पास 0 और 6, तो 0 और 6 सपोज ये पॉइंट हो गया। ठीक है, इसकी हमें जरूरत नहीं है मार्क करने की, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट हो गया 0 और 6। अगर मैं नेक्स्ट टाइम में y को 0 पुट कर देती हूँ तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -4। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया -4 और 0। अगर हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो नेचुरली लाइन की इक्वेशन बनेगी। सो ये लाइन जो है इसकी हो गई और ये कर्व इसका हो गया। सो यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द लाइन एंड द पैराबोला। सो यू हैव टू फाइंड आउट दिस मच एरिया। तो जहां पे कर्व्स मीट करते हैं वहां से आप परपेंडिकुलर्स डाल लीजिए दोनों साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें ये पॉइंट चाहिए। ये पॉइंट निकालने का सिंपल वे है कि यहां से आप y की वैल्यू ले लो, इस इक्वेशन से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सो 4y इज 2 इंटू 2y की वैल्यू है 3x प्लस 12 ऐसे। ठीक है, इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 6x प्लस 24 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। अब इक्वेशन बन जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस वैल्यू विल बी x स्क्वायर माइनस 2x, so x square minus 4x plus 2x minus 8. Middle term splitting I am doing here. Here x is common, so this will be x minus 4. Here 2 is common, so this will be x minus 4 ऐसे. So this value is x minus 4 into x plus 2. So x की मेरे पास दो वैल्यूज आ गई 4 एंड माइनस 2। इसका मतलब ये पॉइंट 4 और 0 हो जाएगा और ये पॉइंट -2 और 0 हो जाएगा। यही पॉइंट हमें चाहिए। अब हमें रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करना है। टू फाइंड आउट रिक्वायर्ड एरिया, अब आप देखो अगर आप लाइन की इक्वेशन लेते हो तो लाइन के नीचे का जितना भी एरिया है, लाइन के नीचे का जितना भी एरिया है वो सारा आ जाएगा। तो ये शुरू कहाँ से हो रहा है, -2 से शुरू हो रहा है, खत्म कहाँ पे हो रहा है, 4 पे खत्म हो रहा है। और लाइन से इक्वेशन लेनी है तो लाइन से हम वैल्यू ले लेते हैं y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 12 अपॉन में 2 इंटू में dx। ये पूरा एरिया आ गया, लेकिन हमें कर्व के नीचे का एरिया नहीं चाहिए। जहां से कर्व शुरू हो रहा है ना, ये वाले पोर्शन के नीचे जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, ग्रीन पोर्शन नहीं चाहिए, तो हम इसको माइनस कर देंगे। ये शुरू कहाँ से हो रहा है, 2 से हो रहा है, और खत्म कहाँ से हो रहा है, 4 पे खत्म हो रहा है। अब कर्व से इक्वेशन लेते हैं। कर्व की वैल्यू है 3x स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू में dx, ये वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसको हमें सिर्फ सॉल्व करना रह गया। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन में 2, लिमिट हो जाएगी -2 to 4, फिर प्लस। अब उसके बाद ये 2 और 12 है तो 2 6 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 तो हम बाहर ले चुके हैं, ये वैल्यू हो गई, प्लस 12 है, 12 और x, इसकी लिमिट हो जाएगी -2 से 4, देन -3/4 बाहर हो गया एंड दिस इज x क्यूब अपॉन में 3 एंड इसकी लिमिट हो गई -2 से 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 1/2, दिस वैल्यू इज 3/2 और x की जगह अगर हम 4 रखते हैं, 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस, फिर x की जगह हम -2 रखते हैं तो ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। 3/2 हो गया, x की जगह हमने 4 रखा, 4 का स्क्वायर माइनस, फिर x की जगह -2 रखा, -2 का स्क्वायर, फिर प्लस 12, x की जगह हमने 4 रखा, फिर आगे माइनस, फिर आगे -2 ऐसे। now ये 3 और ये 3 कट जाएगा, -1/4 हो गया, ये हो जाएगा 64, फिर -8 प्लस 8 हो जाएगा ऐसे। so this value is 1/2 and this is 3/2 into 16 minus 4, that is 12, plus 12 into 4 plus 2 6 हो गया, -1/4 into 72 हो गया। so यहाँ पर 6 हो गया, 18 plus 72, that is 90/2 which is 45, then minus 4 और 72,
तो it will be 18. So 45 minus 18 is 27 units. Find the area of smaller region enclosed by the ellipse x square upon 9 plus y square upon 4 is equals to 1, and the line x upon 3 plus y upon 2 is equals to 1. सो इलिप्स में x के नीचे बड़ी वैल्यू है, तो ये फर्स्ट टाइप का इलिप्स हो गया. इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3,0 स्क्वायर रूट ऑफ 9 एंड देन 4. दिस इज 0,2 स्क्वायर रूट ऑफ 4, राइट. एंड द लाइन है, इस लाइन की मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी ट्रिक बताई थी कि अगर आप x को 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी. दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट यू आर गेटिंग. सिमिलरली अगर आप y को 0 पुट करते हो x की वैल्यू 3 आ जाएगी. तो यानी इफ यू ड्रॉ द लाइन, वो लाइन आपकी ऐसे जाएगी. So you have to find out the area enclosed between the ellipse and the line. So you have to find out this much area. Area enclosed between the ellipse and the line. So ये हमें find out करना है. अब to find out this area, अब ये area शुरू कहाँ से होता है, end कहाँ पर होता है, ये सारी चीजें matter करती हैं. तो इसमें हम क्या करते हैं, required area 0 से 3 हो गया. अगर मैं कर्व से इक्वेशन ले लेती हूँ, कर्व मतलब इलिप्स से इक्वेशन लेती हूँ, तो मुझे पूरा एरिया मिल जाएगा. जितना भी एरिया हम कर्व से यहाँ तक का, ये कंप्लीट एरिया वी विल हैव. अब इसको, इसकी वैल्यू निकालने का मैंने एक वीडियो में बहुत बेस्ट सोल्यूशन बताया था कि अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगी. y की वैल्यू मैं निकालने के लिए 4 का स्क्वायर रूट लूंगी, 9 का स्क्वायर रूट लूंगी ऐसे, और स्क्वायर रूट के अंदर इन दोनों का डिफरेंस लूंगी, 3 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. डायरेक्टली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y. ठीक है, y की वैल्यू निकालने के लिए 4 का स्क्वायर रूट और 9 का स्क्वायर रूट और ये वैल्यू. तो दिस वैल्यू 2/3 तो हमारा बाहर आ जाएगा, एंड दिस इज अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. लेकिन हमें कुछ पोर्शन इसमें नहीं चाहिए. हमें जो लाइन के नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड हियर. तो माइनस कर देते हैं, 0 से 3 हमारी लिमिट हो जाएगी, और लाइन से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो y की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो उसका तरीका भी वही है. y की वैल्यू हो जाएगी 2/3 इंटू में 3 माइनस x. यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं होगा. ठीक है, अगर आप वैसे भी निकालते हो तो y/2 इज इक्वल टू 1 माइनस x/3 होगा. तो y इज इक्वल टू 2/3 और ब्रैकेट में 3 माइनस x. ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर रूट लेते हैं इलिप्स वाले में, और यहाँ पे स्क्वायर रूट लेने की जरूरत नहीं है. दैट इज द ओनली डिफरेंस, 2/3 इंटू 3 माइनस x इंटू में dx. अब हमें पता है कि रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है. दैट फॉर्मूला वी विल अप्लाई हियर. दिस इज x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a square upon 2 sin inverse x upon a plus में c. This is the formula. So this value is 2/3 into x/2. So x/2 under root 9 minus x square plus a square upon 2 sin inverse x upon में 3. ये वैल्यू हो गई -2/3. 3 का इंटीग्रेशन 3x माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2. इसकी लिमिट पुट कर दीजिए 0 से 3. अब इसका रह गया सॉल्यूशन. इसको हमें सॉल्व करना है बाय पुटिंग द लिमिट. इसकी लिमिट भी 0 से 3 है, सो वी विल पुट द लिमिट वेरी केयरफुली हियर. सो दिस वैल्यू इज 2/3. अगर हम x की जगह 3 डालते तो ये टर्म 0 हो जाएगी, और ये हो जाएगा 9/2 साइन इनवर्स 1. फिर आगे माइनस लगा देंगे. उसके बाद जो वैल्यू आएगी 0 रखने पर, ये टर्म तो फिर 0 हो जाएगी और ये टर्म भी 0 हो जाएगी. सो नो नीड टू पुट एनी वैल्यू हियर. सो लेट अस एंड इट हियर. ये टर्म हो गई. देन उसके बाद माइनस, नाउ 2/3. अब इसमें हम 3x है, x की जगह में 3 डाला, 9 हो गया, 0 से 0 हो जाएगा. माइनस 1/2 ऑलरेडी है, इट विल बी 9 माइनस 9/2. साइन इनवर्स 1 हमें पता है, साइन इनवर्स 1 हमारा π/2 होता है. ठीक है, सो इट इज 9 π/4 माइनस, तो दिस वैल्यू 2/3 दोनों में कॉमन आ गया, फिर माइनस 9/2 ऐसे. तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, 2/3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो दिस वैल्यू विल बिकम 3, ये हो जाएगा 3 π/2 माइनस 2 and 2 कैंसिल एंड 3 यूनिट्स.
लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, यहाँ पर भी सेम ही सिचुएशन है, इलिप्स गिवन है, बस वहां पर 3 और 4 थे, यहाँ पर ए और बी गिवन है, बाकी डिफरेंस कुछ नहीं है, आपको ये वाला एरिया इसमें निकालना है। सो अगेन द सेम थिंग, यहाँ पे जब हम रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे तो इस बार भी लिमिट 0 से a लेंगे और वैल्यू y की वैसे ही निकालेंगे, जैसे मैंने बताया था इसका स्क्वायर रूट अपॉन a और अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, परफेक्टली याद कर लीजिए, बहुत सिंपल वे है निकालने का। उसके बाद माइनस है, फिर अगेन 0 से a लिमिट है, और इस बार वैल्यू हो जाएगी b बाई ए इंटू ए, स्क्वायर रूट लेने की जरूरत नहीं है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम हियर। सो b बाई ए इज कांस्टेंट, दोनों में कांस्टेंट है, मैंने दोनों से बाहर ले लिया कॉमन। उसके बाद रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, द लिमिट इज 0 टू ए माइनस, अब a माइनस एक्स है, a का इंटीग्रेशन ए एक्स हो जाएगा, और माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो इसमें लिमिट लगा दीजिए 0 टू a, इसमें भी लिमिट लगा दीजिए 0 टू a, एंड देन सॉल्व करना है कंप्लीटली इसको। अब इसमें देखो b बाई ए तो बाहर है, लेट इट बी आउटसाइड, अगर हम इसकी जगह a रखेंगे ये 0 बन जाएगा, एंड दिस इज a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1, लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन एग्जैक्टली। और उसके आगे खत्म, क्योंकि 0 रखेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, नो नीड टू राइट एनीथिंग। फिर माइनस हो जाएगा, अब अंदर यहाँ पर ये a है, इंटू a माइनस 0 मीन्स a हो गया, माइनस x की जगह a रखेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा, ऐसे। तो अब b बाई ए कॉमन हो गया, साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 2, सो इट इज पाई a स्क्वायर अपॉन 4, ऐसे। फिर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस वैल्यू इज पाई ए बी अपॉन में 4 माइनस ए बी अपॉन में 2। सो अगर हम चाहें तो ए बी कॉमन ले सकते हैं, ए बी अपॉन 2, तो अंदर आ जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस 1, दैट इज द आंसर। In this question, we have to find out the area enclosed between x square is equals to y and the line y is equals to x plus 2 and the x-axis. So read the question very carefully always. X square is equals to y is represented by this. y is equals to x plus 2 में सिंपल चीज है कि अगर मैं x को 0 पुट करूंगी तो y मेरा 2 आ जाएगा, इफ मैं y को 0 पुट करूंगी ये -2 आ जाएगा, ये लाइन बन गई। ठीक है, अब उसने बोला, वो ध्यान से देखना है उसने क्या बोला, उसने बोला कर्व, कर्व हमारा ये वाला है पूरा, चलो लाइन हमारी ये वाली है, एक्स एक्सिस बोला है उसने, ये यहाँ पे बोला है, तो यानी दिस एरिया विच इज इंक्लोज्ड बिटवीन लाइन कर्व एंड एक्स एक्सिस, ये एरिया हमें निकालना है। तो यहीं पर इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात तो यहीं पर आ जाती है सारी। अब जहाँ पे कर्व्स मीट करते हैं वहां से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, अब ये वाला पॉइंट तो हमें पता है कि -2, 0 है, अब ये हमें निकालना है पॉइंट, सपोज द पॉइंट ए। ये निकालने के लिए सिंपल है कि y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में डाल देंगे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 हो जाएगा। तो दिस इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। So this value will be x into x minus 2 plus 1 into x minus 2, ये हो गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 और -1 दो वैल्यूज आ गई, तो यहाँ पर ये पॉइंट -1 और 0 आ गया सिंपल तरीके से। ठीक है, 2 वहां पे आ रहा होगा, उसकी हमें जरूरत नहीं है तो हमने नहीं लिखा। अब हमें जो एरिया निकालना है, इसको मैं एरिया 1 ले लेती हूँ, इसको मैं एरिया 2 ले लेती हूँ। ठीक है, सो रिक्वायर्ड एरिया इट विल बी फ्रॉम -2 टू -1। जो -2 से -1 है वो लाइन के नीचे है, तो लाइन की इक्वेशन ले लेंगे x प्लस 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, फिर प्लस, फिर -1 से जो एरिया आ रहा है वो 0 तक आएगा, -1 से 0 तक आएगा। सो -1 से 0 ले लिया, इस बार कर्व के नीचे है तो कर्व की इक्वेशन ले लेंगे एक्स स्क्वायर इंटू dx। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये चीज हमें समझ आएगी तभी हम। अब x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 होता है, लिमिट है -2 से -1। 2 का इंटीग्रेशन 2x है, लिमिट -2 से -1। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 है, लिमिट है -1 से 0।
तो अगर हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू तो 2 आ गई, अगर हम x की जगह -1 करते हैं तो ये 1 आ जाएगा, फिर बीच में माइनस आएगा, फिर x की जगह -2 करते हैं तो ये 4 आ जाएगा, ये 4 हो गया, फिर प्लस, अब 2 हो गया तो ये -1 और +2 हो गया, तो -1 एंड +2 ये वैल्यू आ गई, फिर प्लस है, अब x की जगह 0 करते हैं तो 0 हो जाएगा, फिर बीच में माइनस आएगा, ठीक है, 0 माइनस और -1 का क्यूब माइनस, तो ये +1 हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा. So 1 minus 4 is -3 upon में 2. So this value is -3 upon 2 plus 2 हो जाएगा and +1 upon में 3 हो जाएगा. So इसमें हम LCM ले लेते हैं, LCM हमारा 6 आ जाएगा. So this value is -9 plus 12 plus 2. So 14 minus 9, this is 5 upon 6 square unit. Here we have to find out the area enclosed by this curve. ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कर्व है, उसका रीजन ये है कि मॉड्यूलस दोनों हैं, हो सकता है x माइनस हो y प्लस हो, दिस इज वन सिचुएशन, हो सकता है x प्लस हो y माइनस हो, दूसरी सिचुएशन, थर्ड हो सकता है दोनों ही पॉजिटिव हो, थर्ड सिचुएशन, एक और हो सकता है कि दोनों ही नेगेटिव हो, नेक्स्ट सिचुएशन. और जब हम इन चारों लाइंस को इकट्ठे बनाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके की सिचुएशन आके खड़ी हो जाती है सामने, ठीक है. ये रिप्रेजेंट करेगा x प्लस वाई 1, ये रिप्रेजेंट करेगा -x प्लस वाई 1, ये रिप्रेजेंट करेगा -x माइनस वाई 1, और ये रिप्रेजेंट करेगा x माइनस वाई 1, है ना. चारों लाइंस आ गई. अब हमें एरिया इंक्लोज पूरा एरिया निकालना है, तो अगर हम एक एरिया निकालें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी पूरा एरिया हो जाएगा. सो वी विल फाइंड आउट द रिक्वायर्ड एरिया. रिक्वायर्ड एरिया जो होता है वो शुरू कहाँ से, ये जो पॉइंट है ये 1,0 पॉइंट है, बिकॉज अगर x प्लस वाई 1 है, अगर मैं y को 0 पुट करती हूँ तो x की वैल्यू 1 ही आएगी. सो लिमिट इज 0 to 1, ठीक है. ये x प्लस वाई लाइन है ना, इसमें अगर हमने x को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 1 आ गई, तो ये कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गई, 0 to 1 लिमिट हो गई. अब y से जो वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस एक्स इंटू dx निकाल देंगे. अब जो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, और x का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2 हो जाएगा, ऐसे. सो x की जगह 1 रखेंगे, 1 माइनस 0, देन माइनस अपॉन 2, तो ठीक है, x की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0. सो दिस वैल्यू इज 1 माइनस 1 अपॉन 2. एरिया इज 4 टाइम्स ऑफ द रिक्वायर्ड एरिया ना, तो रिक्वायर्ड एरिया जो हमारा है ये इसका 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स है तो हमारा सब कुछ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है. सो आंसर जो फाइनल आंसर होगा दैट इज 4 into half, and 4 into half is 2 square unit. that is the area of complete, जो required area है वो complete area ये वाला हो जाएगा. So here we have to find out the area enclosed between these two curves. So y is equals to x² is representing this upward parabola, and the line y is equals to mod x representing one positive x and one negative x. So this is what we have. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है और ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है. एरिया एनक्लोज बिटवीन द parabola and the line y is equals to mod of x. This is what we have to find out. So जैसे मैंने पहले से सिखाया है कि जहां पे कर्व्स मीट करते हैं वहां से आप परपेंडिकुलर्स डाल दीजिए, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए. अब अगर हमारा y is equals to x² है और मैं y की जगह x डाल देती हूँ, इसको नॉर्मल इक्वेशन की तरह सॉल्व करते हैं. x is equals to x² माइनस x is equals to 0, x into x minus 1 is equals to 0. x की दो वैल्यूज आती हैं 0 and 1. 0 तो ठीक है, तो ये पॉइंट जो है 1 और 0 हो गया. अगर हम y is equals to माइनस x डाल देते हैं तो x की वैल्यू माइनस, तो दिस वैल्यू विल बी दिस -1 and 0. सो रिक्वायर्ड एरिया, अगर हम इसको एरिया 1 मान लेते हैं तो रिक्वायर्ड एरिया इज ट्वाइस ऑफ एरिया 1. दिस इज ट्वाइस ऑफ एरिया 1. So twice of area 1 is starting from 0, है ना, 0 से शुरू हो रहा है और 1 पे एंड हो रहा है. So it is from 0 to 1, ठीक है. और ये लाइन है तो इस लाइन के नीचे का पूरा एरिया हमें मिल जाएगा, ये वाला एरिया हमें पूरा फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस इज 0 to 1 और लाइन की इक्वेशन है y is equals to x into dx. ये हो गया, बट ये एक्स्ट्रा आ गया, हमें कुछ एरिया इसमें से नहीं चाहिए. हमें जो कर्व के नीचे का एरिया है, दिस एरिया इज नॉट रिक्वायर्ड, ये वाला एरिया हमें नहीं चाहिए.
ठीक है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, -0 to 1 ले लेंगे और कर्व से इक्वेशन ले लेंगे x² इंटू में dx, ये वाली वैल्यू आ गई। अब हमें इसको सिंपली सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना। सो दिस विल बी, ये हो जाएगा ट्वाइस, इसको बाहर ले लीजिए, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से 1, माइनस x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3, इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से 1। ठीक है, 2 हो गया। अब x की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो 1 - 0 1/2 हो जाएगा, फिर x की जगह 1 रखते हैं तो 1/3 हो जाएगा। सो 2, अब यहाँ पर 6 आपका एलसीएम हो गया 1/6, तो आंसर इज 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। Here we have to find out the area enclosed by the 3 vertices. So अगर हम इनको लोकेट करते हैं 2 0, सपोज ये वाला पॉइंट है A, दिस पॉइंट इज 2,0। दूसरा पॉइंट हम B कर रहे हैं 4,5, सपोज दिस इज द पॉइंट B which is 4,5। थर्ड पॉइंट आप C ले रहे हैं which is 6,3, suppose this is the point C which is 6,3। ये पॉइंट्स हमने लिए, हम इनको ज्वाइन कर देते हैं। अब हमें एरिया इनक्लोज बाय दीज 3 वर्टिसेस फाइंड आउट करना है, मतलब आपको ये ट्राइंगल का एरिया पूरा फाइंड आउट करना है। टू फाइंड आउट दिस, ट्राइंगल में हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, ट्राइंगल में क्या सभी फिगर्स में यही हो रहा है कि जहां पर कर्व्स मीट कर रहे हैं वहां से हम परपेंडिकुलर्स डाल रहे हैं। देखो ए तो ऑलरेडी एक्स एक्सिस पर है, सो नो नीड टू ड्रॉ। ठीक है, सी है, सी से हमने परपेंडिकुलर डाला, यहाँ क्लियर है कि एक्स कोऑर्डिनेट 6 है तो ये 0.6,0 हो गया। सिमिलरली हमने बी से डाला परपेंडिकुलर, तो बी का ये 4 है तो ये 0.4,0 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब सबसे पहले तो हमें इक्वेशंस चाहिए, हमें ए बी की इक्वेशन चाहिए, हमें बी सी की इक्वेशन चाहिए, हमें ए सी की इक्वेशन चाहिए, क्योंकि एरिया निकालने के लिए हमें पता है कि हमें इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। तो इक्वेशन ऑफ ए बी, तो हमें इक्वेशन ऑफ ए बी निकालना है। फॉर्मूला जो होता है ना वो होता है y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। दिस इज द फॉर्मूला, ये हमने 11th क्लास में सीखा है स्ट्रेट लाइंस वाले चैप्टर में। सो अगर मुझे ये 2 पॉइंट्स गिवन है ए बी लाइन के, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो इनमें से एक को हम मान लेते हैं x1 y1, दूसरे को मान लेते हैं x2 और y2। सपोज हमने जो ये है a है इसको x1 y1 मान लिया और b को हमने x2 y2 मान लिया, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी y - 0 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1, ये इक्वेशन हो जाएगी। सो y की वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन में 2 इंटू x माइनस में 2, ये इक्वेशन ऑफ ए बी होगी। ठीक है, अब हमें जैसे हमने ए बी की इक्वेशन निकाली है वैसे ही हमें बी सी की इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ हम बी सी निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ बी सी के लिए हो जाएगा y - y1 इज इक्वल टू m इंटू y2 - y1 होता है, तो ये जाएगा 5 - 3 अपॉन x2 4 - 6 इंटू x - 6। ठीक है, सो दिस विल बी y इज इक्वल टू 3 माइनस x - 6, so y is equals to 9 - 6, this value we have here. Now equation of AC हमें निकालना है। To find the equation of AC, it will be y - y1 m will be 3 - 0 upon 6 - 2 into x - x1. So the value of y comes out to be 3 upon 4 into में x - 2. So this is the value we have for the equation. Now we will find out the required area. To find the required area, first we will, if we take the limit from 2 to 4, just see in the figure, if we take limit from 2 to 4 and take the equation AB, then we will get this particular area, ये वाला एरिया हमें मिल जाएगा। So AB से जब हम वैल्यू निकालते हैं, so this value is 5/2 into x - 2, ये आ गया। और अगर हम 4 से 6 लिमिट लेते हैं और हम इक्वेशन BC की इक्वेशन लेते हैं, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो है 9 - x इंटू में dx। बट इस केस में क्या हुआ कि हमारा एक एरिया एक्स्ट्रा आ गया, ये वाला एरिया हमारा एक्स्ट्रा आ गया, ये तो हमें नहीं चाहिए था, ये एरिया हमारा एक्स्ट्रा आ गया। तो हम क्या करेंगे, -2 से 6 लिमिट लेंगे
और हम AC की अगर इक्वेशन लेते हैं तो ये एरिया हमारा डिलीट हो जाएगा इसमें से. सो इट विल बी 3/4 इंटू x माइनस 2 इंटू में dx. Now we will solve this to find the area of triangle. Just solve it very carefully. This value is 5/2. अगर हम अंदर इंटीग्रेशन लेते हैं, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, इसकी लिमिट हो जाएगी 2 से 4, माइनस 2 का इंटीग्रेशन 2x, इसकी लिमिट हो जाएगी 2 से 4. देन हेयर 9 का इंटीग्रेशन 9x, इसकी लिमिट हो जाएगी 4 to 6. x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, इसकी लिमिट हो जाएगी 4 to 6. माइनस 3/4, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, इसकी लिमिट हो जाएगी 2 to 6, माइनस 2x, इसकी लिमिट हो जाएगी 2 to 6. So you have to be very careful while solving these so that you may not commit mistake while solving these answers. So here it is like this. Limit fundamental theorem हमें पता ही है, हम 2 को बिल्कुल नीचे रखेंगे. x की जगह अगर मैं 4 पुट करती हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, 4 का स्क्वायर मतलब 16 हो गया. देन माइनस, फिर हम 2 पुट करते हैं तो 4 हो जाएगा. देन माइनस 2, इट विल बी 4 minus 2, क्लियरली 2 हो गया. उसके बाद 9 into 6 minus 4, that means 2. Minus 2 नीचे, 6 का square 36 minus 16. This value we have minus 3/4. Here 2 is in denominator and 36 minus 4. This value we have minus 2 into 4. ठीक है? So see the calculations very carefully. If you do not understand, just rewind it. You will get to know the things. 16 minus 4 is 12. 12 upon 2 is 6 minus 4. Like this. Plus this value will be 18. Minus 36 minus 16 is 20. 20 upon 2 is 10. Minus 3/4. 36 minus 4 is 32. 32 upon 2 is 16. Minus 8. So be very careful. I'm telling you again and again. Just see these things carefully. 6 minus 2 को अगर हम देखें तो 2 होता है. 2 and 2 cancel. Only I'm left with 5. 18 minus 10 is 8. And 16 minus 8 is 8. 4 इधर है यहाँ पर, तो ये कट के 2 बन जाएगा. So it is minus 6. So 5 plus 2. It will be 7 square units. That is the answer. So in this question we are given 3 equations. आपको इनसे फिगर ड्रॉ करना है और जो भी एरिया इनक्लोज होगा आपको वो फाइंड आउट करना है. So अगर आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हो और आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा. सपोज अगर मैं फर्स्ट 2 इक्वेशंस को सॉल्व करूं तो क्या है, देखो इन इक्वेशंस में अब y का कोफिशिएंट सेम नहीं है. मैं सेम बना सकती हूँ. इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ये 4 बन गया, ये 2 बन गया और ये 8 बन गया. अगर अब इनको हम ऐड करते हैं 2y तो कैंसिल हो जाएगा. सो इट विल बी 7x इज इक्वल्स टू 8 plus 6. 8 plus 6 is 14. So x की वैल्यू 2 आ जाएगी. So if I put x is equals to 2, suppose in this equation it will be 6 minus 2y is equals to 6. I will get y is equals to 0. तो सिंपल हमें जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 2,0 मिल गया. फर्स्ट 2 इक्वेशंस का 2,0 लाइज हियर. सो वी हैव दिस पॉइंट. सिमिलरली हम नेक्स्ट 2 इक्वेशन से इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं. सो अगर हम यहाँ पे देखें, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 9 हो जाएगा और ये 15. अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस. दिस विल गेट कैंसिल. 9y minus 2y will be 7y. 15 plus 6 is 21. तो y की वैल्यू हमें 3 मिल गई. और y की वैल्यू 3 अगर सपोज हम सेकेंड इक्वेशन में रख देते हैं तो 3x minus 6 is equals to 6 हो जाएगा एंड x is equals to ये हो जाएगा 4. तो हमें कोऑर्डिनेट मिल गए 4,3. 4,3 जो कोऑर्डिनेट, ये जो है फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन का है. ठीक है, और जो ये है ये आपका सेकेंड और थर्ड इक्वेशन का है. सो हमने 4,3 कोऑर्डिनेट ले लिया. ये वाला पॉइंट सपोज 4,3 ये आ गया. उसके बाद हमें फर्स्ट सेकेंड का निकाल दिया, सेकेंड और थर्ड का निकाल दिया. अब हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन का निकालेंगे. जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो है 2x plus y is equals to 4. और जो थर्ड इक्वेशन है वो है x minus 3y is equals to minus 5. अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो जो मेरी इक्वेशन है ये 2, 6 और ये 10 बन जाएगी. अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दिस विल कैंसिल. 6y plus y 7y हो जाएगा. 10 plus 4 14. y की वैल्यू 2 आ गई.
y इज इक्वल टू 2 अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में डालती हूँ तो मेरे पास 2x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. सो जो मेरा कोऑर्डिनेट है वो 1 और 2 हो गया फॉर द इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो 1 एंड 2, this is the point, suppose 1 comma 2. If I join these points, I will get a figure like this. So we have to find out the area of this triangle. So here the important was to find the coordinates. मैंने बहुत fast coordinates निकाल दिए because I suppose 10th class 12th class के बच्चे 10th के method को आराम से कर सकते हैं. This was the elimination method to find the equations, to find the point of intersection of the lines. So now we will be finding out the area. तो एरिया निकालने का जो फर्स्ट रूल होता है, अब अपने फिगर को हम दोबारा अच्छे से देख लेते हैं. द फिगर इज 1,2, 2, 0 and 4, 3. This area I am finding out. Area of this figure. So what we do, we will draw the perpendiculars from the vertices. So one vertex is already on x-axis, so no need from there. So this coordinate will be 1, 0 and this coordinate will be 4, 0. Now just see one thing, very important. जो 1 और 2 है, that was the point of intersection of जो 1, 2 point है, that is the point of intersection of first line and third line. So this is very important. तो इसका मतलब इस पर दो ही लाइनें आ रही हैं, इस पर दो लाइन आ रही है, इनमें से ही एक फर्स्ट होगी एक थर्ड होगी, है ना. तो इसका मतलब जो तीसरी लाइन है वो सेकेंड लाइन हो गई. फिर से सुनिए ध्यान से, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि 1, 2 पर दो लाइंस आ रही हैं, फर्स्ट एंड थर्ड. इसका मतलब दोनों लाइनों में से एक फर्स्ट है एक थर्ड है, तो बची हुई लाइन सेकेंड हो गई. सिमिलरली अगर हम पॉइंट 4, 3 को देखते हैं, इस पर दो लाइंस आ रही हैं, सेकेंड एंड थर्ड. सो 4, 3 पर दो लाइंस हैं, सेकेंड एंड थर्ड, तो ये तो सेकेंड हो गई, ये लाइन भी आ रही है, इसका मतलब ये थर्ड लाइन हो गई. ठीक है, तो अब हमें यहां से ये पता चल गया कि कौन सी लाइन कौन सी है, एंड दिस इज द फर्स्ट लाइन. ठीक है, जिनको नहीं समझ आया हो रिवाइंड करके देख लेना. अब हम रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करते हैं. रिक्वायर्ड एरिया, सबसे पहले अगर हम 1 से 4 लिमिट लेते हैं और ये इक्वेशन लेते हैं तो हमें ये पूरा एरिया मिल जाएगा, है ना. वेरी सिंपल. सो हमने क्या किया, 1 से 4 लिमिट ले ली और थर्ड इक्वेशन ले ली. थर्ड इक्वेशन से हमें वैल्यू निकालनी. थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस 3y इज इक्वल टू -5 है. हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y एंड y की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी x प्लस 5 अपॉन में 3. ठीक है, ये यहाँ पे पुट कर देते हैं क्योंकि y की वैल्यू निकाल के पुट करनी होती है. बट इसमें तो कुछ एरिया ऐसा है जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए. कौन सा एरिया, एक ये वाला एरिया जो हमें नहीं चाहिए, तो हम माइनस कर देते हैं. अब ये एरिया शुरू 1 से हो रहा है और एंड 2 पर हो रहा है, तो इसकी लिमिट हमने ले ली 1 से 2. अब यहाँ पर इक्वेशन हमारी 1 आएगी और जो 1 इक्वेशन है उससे y की वैल्यू निकाल लो. इक्वेशन 1 है 2x प्लस y इज इक्वल टू 4. सो y की वैल्यू सिंपल आ जाएगी 4 माइनस 2x. डायरेक्टली पुट इट हियर. बट अभी एक और एरिया रहता है जो एक्स्ट्रा है, हमें ये भी एरिया नहीं चाहिए, इस एरिया को भी हमें माइनस करना पड़ेगा. अब ये एरिया शुरू कहाँ से हो रहा है, 2 से, एंड कहाँ पे हो रहा है, 4 पर. तो दिस इज फ्रॉम 2 to 4. अब जो ये लाइन सेकेंड है, सेकेंड से इक्वेशन ले लीजिए. जो सेकेंड इक्वेशन है वो इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6. ये आपकी सेकेंड इक्वेशन. तो यहां से अगर हमें y निकालना हो, दिस इज 3x माइनस 6 अपॉन 2. समझ गए होंगे, 6 को इधर ले आए, 2y को इधर ले गए, 2 मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में आ गया. सो दिस इज 3x माइनस 6 इंटू में dx अपॉन 2 को हमने बाहर लिख लिया. इस स्टेज के बाद आंसर निकालना बहुत इजी है. तो नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी 1/3 आउटसाइड, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन में 2, लिमिट 1 से 4. 5 का इंटीग्रेशन 5x, लिमिट 1 से 4, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 4 का इंटीग्रेशन 4x, लिमिट 1 से 2. x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, 2 and 2 कैंसिल, लिमिट 1 से 2, माइनस 1/2. 3x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन में 2, लिमिट 2 से 4. 6, x का सिंगल है तो x हो गया एंड लिमिट 2 से 4.
नाउ दिस इज 1/3. अगर मैं x की जगह 4 रखती हूँ तो 16 हो गया, फिर बीच में माइनस, फिर 1 रखती हूँ तो दिस विल बी 15/2. ठीक है, 16 - 1 प्लस 5, 4 - 1 विल बी 3 माइनस यहाँ पर 4, 2 - 1 will be 1, no need to write, and this will be 4 - 1 3 like this. बहुत फास्ट नोट कर लिया करो, बहुत ज्यादा स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, आराम से एक स्टेप में आंसर आता है तो करिए, बट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जो भी आप सॉल्व कर रहे हो. दिस विल बी 16 - 4, दिस वैल्यू विल बी 12, राइट. 6 × 4 - 2 इट विल बी 2. ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस आई एम यूजिंग. अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आ रहा तो एक्सरसाइज 7.9 का वीडियो देखिएगा इंटीग्रेशन का, वहां पर बहुत क्लियरली मैंने ये चीज एक्सप्लेन की हुई है. ठीक है, बिकॉज हम एप्लीकेशंस कर रहे हैं तो बहुत डिटेल में मैं फंडामेंटल थ्योरम नहीं समझा रही हूँ, जस्ट कैलकुलेशंस कर रही हूँ. उसके बाद ये वैल्यू है 15. अब देखो 15/2 + 15 दैट इज 45/2 ये वैल्यू हो जाएगी हमारी. ये जो पूरी वैल्यू है ये सॉल्व करके ये 45/2 हो गई. सो हियर इट विल बी 1/3 into 45/2. Then minus 4 - 3 1 होता है, so it will be -1. Then -half into here we have ये 6 हो जाएगा, तो 18 - 12. 18 - 12 is 6. So अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3 और 45 कट जाता है, 15/2. So this value is 15/2 -1 - 3. इसको हम लिख सकते हैं 15 - 4 and it will be 15 - 8/2 and this will be 7/2 square units. This is the answer. Here we have to find out the area enclosed between these two. So here one is looking like a parabola, another is looking like a circle. ठीक है, पैराबोला तो हमें पता ही है कि ये हमारा राइट पैराबोला है, y² = 4x. बट जो ये सर्कल है इसको थोड़ा सा हम और ध्यान से देखते हैं. दिस इज x² + y². मैंने 4 को वहां शिफ्ट कर दिया जिसको मैं 3/2 का स्क्वायर कह सकती हूँ. अब इसका जो सेंटर है वो 0 0 है. ठीक है, और जो इसका रेडियस है वो 3/2 है. ठीक, तो सर्कल हमें समझ आ गया कि ये सर्कल है, इसका सेंटर 0 0 है और उसका रेडियस 3/2 है. So we have to find out the area enclosed between these. So आपको क्या करना है, जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां से आपने इसको इस तरीके से ज्वाइन करना है. ठीक है, अब हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है वो एरिया, ये वाला एरिया निकालना है. इसको हम एरिया 1 कह सकते हैं. दिस इज एरिया 1. और हमें ये वाला एरिया निकालना है, इसको हम एरिया 2 बोल सकते हैं. ठीक है, ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है. दिस इज एरिया 2. सो 2 एरियाज हमें निकालने हैं और जो 1 है वो ये वाला एरिया भी है. ठीक है, और इधर ये वाला एरिया सेम ही है ये एरियाज. तो हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड एरिया, बिकॉज हमें ये पॉइंट भी निकालना है, बहुत सारी चीजें निकालनी है इसमें. तो पहले ये 0 0 निकाल लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं इस पॉइंट के. तो हम क्या करते हैं, y² को 4x हम यहाँ पे रख लेते हैं. 4x² + 16x - 9 = 0. अगर हम इसके फैक्टर्स लें तो ये 4 2 2 3 और 3 है, ये 3. सो दिस विल बी 18 और 2. सो दिस इज 4x² + 18x - 2x - 9 = 0. 2x कॉमन ले लिया, दिस इज 2x + 9. फिर -1 कॉमन ले लिया, दिस इज 2x + 9. तो ये वैल्यू हो गई 2x + 9 इंटू 2x - 1. सो x की वैल्यू एक आ गई -9/2 और दूसरी आ गई 1/2. तो माइनस तो नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर 1/2, 0. अब रिक्वायर्ड एरिया इज 0 to ½ और हम एरिया 1 निकाल रहे हैं, उसका ट्वाइस तो हम दोनों का ही करेंगे. एरिया 1 में जो हम कर्व की इक्वेशन लेंगे वो इस कर्व की इक्वेशन ले लेते हैं, तो आपको ये एरिया 1 पूरा मिल जाएगा, ये वाला एरिया. तो इसमें अब y² = 4x है जिसको हम 2√x कह सकते हैं. प्लस अब जो नेक्स्ट एरिया है 1/2 से शुरू हुआ, 3/2 पर एंड हुआ, लेकिन इस बार क्या है, सर्कल से इक्वेशन लेनी है. ठीक है, तो दिस विल बी
3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने सर्कल से इक्वेशन ले ली, इनटू में dx, ये हो गया। अब ये हो जाएगा 2, अब इसमें रूट एक्स है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x पावर हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2 इंटू 2/3, ठीक है, और लिमिट हो जाएगी 0 से हाफ। फिर उसके बाद प्लस ये होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब 9/4 इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 होता है ना, तो 9/4 इंटू में 2 इंटू साइन इनवर्स x/में a, ये ऐसे हो गया, और इसकी लिमिट हो जाएगी हाफ से 3/2 ऐसे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हेयर नाउ अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज 2, दिस इज 4/3, x की जगह अगर हम 1/2 रखते हैं, सो दिस इज 1/2√2 ऐसे हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2, अगर हम x की जगह 3/2 ये टर्म तो 0 हो जाएगी, सो दिस इज 9/8 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। फिर माइनस अगर हम हाफ रखते हैं x की जगह, तो ये तो 1/4 हो जाएगा, एंड दिस इज 9 माइनस 1/4 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 9/8, ये साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 2√2 कट के तो 2√2 हो गया, so this value is 2√2 अपॉन में 3 प्लस 9/4 इंटू π/2, साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, सो माइनस, अब ये आपका 4 और 8 है ना, तो ये आपका 2 बन जाएगा, तो दिस इज √2 अपॉन 2, ये वैल्यू √2 अपॉन में 2 हो जाएगी, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर यहाँ पर, और ये हो जाएगा माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। सो अगर हम इसको देखें, ये टर्म आ गई 9π/में 8, और ये टर्म आ गई माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अगर हम इन दोनों टर्म्स को देखते हैं, तो इन दोनों टर्म्स में एलसीएम जो हमारा बनता है वो बनता है 6, so this will be 4√2 minus 3√2, that will be √2 अपॉन में 6। सो √2 अपॉन 6 को हम अगर हम चाहें तो 6 के फैक्टर्स कर सकते हैं अगले स्टेप में, मतलब इसके हम फैक्टर्स को कर सकते हैं 3 इंटू में 2 अगले स्टेप में करेंगे, या इसको √2 का स्क्वायर करेंगे, तो ये और ये कैंसिल भी हो सकता है, यानी जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 प्लस 1 अपॉन में 3√2, दिस इज द आंसर। Here in this question y is equals to x cube का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से और इस तरीके से होता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y is equals to x cube। x एक्सिस की लाइन है तो x एक्सिस की लाइन हमारी ये हो जाती है, x is equals to 1 है तो उसकी लाइन x is equals to 1 की यहाँ पर ऐसे हो जाएगी, x is equals to -2 है तो -2 की लाइन यहाँ से ऐसे हो जाएगी, x is equals to -2। So you have to find out the area enclosed between this, एक तो ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है, this complete area, and this complete area we have to find out, ये वाला एरिया। So to find out this green area, हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अब ये वाला पॉइंट हमें मालूम चल गया -2,0 है, बिकॉज लिमिट्स हमें डिसाइड करनी है, ये पॉइंट हमें पता ही है कि ये ओरिजिन है, और ये वाला पॉइंट भी हमें मालूम है कि ये 1,0 है। सो सपोज दिस इज एरिया 1 एंड दिस इज एरिया 2। कोई भी एरिया जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर निकालते हो तो उसको मॉड में निकालना हमेशा याद रखना, बिकॉज अगर बाई चांस कोई एरिया नेगेटिव आ गया तो आपका आंसर पूरा रॉन्ग हो जाएगा। सो मॉड्यूलस में हम लिमिट ले रहे हैं -2 to 0, ठीक है, एंड ये जो कर्व है वो तो x क्यूब ही है, x क्यूब इंटू dx, फिर प्लस अब लिमिट 0 से 1 ले रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव लाइक दिस। सो x क्यूब का इंटीग्रेशन x पावर 4/4 हो जाएगा, लिमिट -2 to 0 हो जाएगी, अगेन इट इज x पावर 4/4 हो जाएगा, एंड जो लिमिट है वो 0 to 1 हो जाएगी। So this is mod, and this will be minus +16 अपॉन में 4 mod हो गया, एंड प्लस इट इज 1/4, तो ये जो है 4 हो जाएगा, 4 + 1/4, दिस विल बी 17/4 स्क्वायर यूनिट्स, दैट इज द आंसर। तो y इज इक्वल्स टू x मॉड्यूलस ऑफ x है, तो y इज इक्वल्स टू x मॉड्यूलस, मतलब मॉड्यूलस x एक बार पॉजिटिव होगा एक बार नेगेटिव होगा, तो जो इसका ग्राफ होगा वो इस तरीके से बनेगा,
लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर x इंटू मॉड ऑफ x है, तो इधर जो है पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इधर जो है सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू। दिस इज द ग्राफ। ऑर्डिनेट्स लेने हैं, x इज इक्वल टू -1 लेना है, तो ये ग्राफ हो गया x इज इक्वल टू -1, ये हो गया x इज इक्वल टू 1, ये वैल्यूज हमारी हो गई। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, -1, ये -1 और 0 लिमिट हो गई। दिस इज ओरिजिन वी नो ऑलरेडी, एंड दिस इज 1 एंड 0, ये हमारा हो गया। तो हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, एंड हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो अब हम इसमें देखेंगे माइनस, बिकॉज दोनों ही एरिया सेम है, बिकॉज ये हमारा, हमें पता ही है कि ये आपके जो फंक्शंस हैं वो सेम है। यहाँ पर एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2 है। सो अगर आप एरिया 1 और एरिया 2 निकालेंगे तो रिक्वायर्ड area will be twice of area 1, we can say here, and 2, area 1 is starting from 0 ending at 1, and as I said कि first quadrant में x into mod x positive है, तो x square we can take in the first quadrant like this. So this will be this, and x square is x cube upon में 3, and the limit is 0 to 1 ऐसे. So this is 2 by 3 outside and 1 minus 0. So area will be 2 by 3 square units. That is the answer. Here you have to find out the area of the circle exterior of the parabola. तो जैसे सर्कल है, सर्कल का हमें पता चल गया कि सेंटर 0 0 है, इसका रेडियस हमारा 4 है ना, बिकॉज x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर होता है, तो ये हमें मालूम चल गया, ये पॉइंट हमारा 4 और 0 हो गया। y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x है, इसका कर्व ये वाला हो गया। तो जहां पे कर्व्स मीट करते हैं वहां से हम परपेंडिकुलर डालते हैं, ये बात हमें मालूम है। ठीक है, अब लेकिन उसने हमें हर बार क्वेश्चन में हम अंदर का एरिया निकालते थे, लेकिन इस बार उसने कहा है कि पैराबोला के एक्सटीरियर का एरिया निकालो, बट इट इज नॉट इजी टू फाइंड आउट द एरिया एक्सटीरियर ऑफ पैराबोला। तो हम क्या करते हैं, हम निकालते एरिया इंटीरियर ही है, हम ये वाला एरिया पूरा निकाल लेते हैं, बाद में सर्कल में से उसको माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से भी हम एक्सटीरियर का एरिया निकाल सकते हैं, दिस इज द इजी मेथड फॉर दिस। तो हमारे पास दो एरिया, इसको हम एरिया 1 ले लेते हैं, इसको हम एरिया 2, दिस इज ऑल्सो एरिया 1 एंड दिस इज एरिया 2। सो जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया डेफिनेटली एरिया ऑफ सर्कल है, ठीक है, -2 इंटू एरिया 1 प्लस एरिया 2 है, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल -2 इंटू एरिया 1 प्लस एरिया 2। अब एरिया ऑफ सर्कल तो पाई आर स्क्वायर ही होता है, बहुत सिंपल सी चीज है, पाई आर स्क्वायर 2। अब एरिया 1 कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पे खत्म हुआ हमें ये देखना होता है। ठीक है, अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की तो क्लियर सी चीज है कि वाई स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन में डाल देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 2, है ना। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, -8 और 2, तो माइनस को छोड़ो, हमें तो 2 चाहिए, तो हमारा ये जो कोऑर्डिनेट है वो 2,0 हो गया। ठीक है, तो अब हम जो एरिया 1 है वो हमारा शुरू कहाँ से हुआ है, वो एरिया 2 से 0 से शुरू हुआ है, 2 पे एंड हुआ है, तो ये लिमिट हो गई 0 से 2, और कर्व से हमने इक्वेशन अगर ले ली तो हमारा एरिया 1 निकल आएगा। तो वाई स्क्वायर 6x है, तो ये हो जाएगा √6 हमारा बाहर हो गया, √x dx हो गया। फिर प्लस, अब वो 2 से 4 पर है, अब इस बार हम अगर सर्कल से इक्वेशन लेते हैं तो हमें एरिया 2 मिल जाएगा ऐसे। ठीक है, तो अब सर्कल से इक्वेशन हो जाएगी 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब हमें इसको सॉल्व करना है केयरफुली। अब r को तो हम जानते हैं, जो r है वो क्या है, रेडियस इज 4, दिस इज क्लियरली 16 माइनस, ये हमारा ट्वाइस ऑफ एरिया हो गया, एंड यहाँ पर √6 हो गया, √x का हो जाएगा x पावर 3/2, लिमिट 0 से 2 हो गई, और 2/3 रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये हो गया। फिर उसके बाद प्लस हुआ, अब इसमें हमें फॉर्मूला लगाना है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, वो होता है x/2 √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो √a स्क्वायर मतलब 16 हो गया माइनस x स्क्वायर, प्लस a स्क्वायर यानी 16/2 हो गया, साइन इनवर्स
x अपॉन a हो गया, ये 4 हो गया, ये लिमिट हो गई 2 से 4, ठीक है। सो दिस विल बी 16 पाई माइनस 2। अब ये तो 2√6 अपॉन में 3 हो गया, और ये 2 पावर 3/2 है, जिसको हम 2√2 कह सकते हैं, बिकॉज 2 पावर 3/2 √2 पावर 3, इसको हम क्लियरली 2√2 बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा कि हमने कैसे किया इसमें। फिर दिस वैल्यू इज 2√2, फिर प्लस लिमिट भी पुट कर दी, सब कुछ हो गया इसमें। यहाँ पे x की जगह अगर हम 4 पुट करते हैं तो ये टर्म तो हमारी 0 हो जाएगी, प्लस 16/2 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर बीच में माइनस आ गया, अब x की जगह 2 पुट कर रहे हैं तो इट विल बी 2/2 16 - 4, ये हो गया, प्लस 16/2 साइन इनवर्स 1/2, 2/4 1/2 वैल्यू होगी। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 16 पाई माइनस 2। अगर हम यहाँ पे अब देखें तो ये 4√12 हो गया, 4√12 अपॉन में 3 हो गया, प्लस 16/2 8 हो गया, साइन इनवर्स 1 पाई अपॉन में 2 हो जाएगा, फिर माइनस। अब यहाँ पर ये और ये कट गए, 16 - 4 होता है 12, ठीक है। 12 को हम 2√3 कह सकते हैं, तो माइनस 2√3 ले लिया, फिर माइनस, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, 8 साइन इनवर्स हाफ इज पाई अपॉन में 6 वी कैन टेक, ठीक है। अब ये हो जाएगा 16 पाई माइनस, अब √12 है, इसको हम 2√3 कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8 2 16 √3 अपॉन में 3, ठीक है। फिर माइनस, ये कट जाएगा, 8 पाई हो जाएगा, फिर प्लस 4√3 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 8 प्लस 8 पाई अपॉन में 3। अब लाइक टर्म्स को हम देख लेते हैं, 16 पाई माइनस 8 पाई, 8 पाई हो गया, प्लस 8 पाई अपॉन 3 है, सो इट विल बी 24 + 8 32 पाई अपॉन में 3, ठीक है। 16 पाई माइनस 8 पाई 8 पाई, 8 पाई प्लस 8 पाई अपॉन 3, तो 32/3 हो गया। फिर माइनस 16√3 अपॉन 3 है, तो इसमें अगर हम एलसीएम ले लेते हैं 3 का, तो ये तो माइनस 16√3 हो जाएगा और ये 12√3 हो जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं 32 पाई अपॉन 3 माइनस 12, 16 - 12 - 4 हो गया, तो 4/√3 भी कह सकते हैं इसको, square units. That is the answer. Here we have to find out the area enclosed between cos x, sin x, y axis and the limit. देखो, जो y is equals to sin x होता है, इसका ग्राफ हमेशा सेंटर से पास होके ऐसे जाता है, ठीक है। जो cos x होता है, उसका ग्राफ हमेशा ऊपर से ऐसे पास होता है, ऐसे पास होके ऐसे पास होता है, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट कि जो cos का ग्राफ है वो हमारा ऊपर से जा रहे हैं, cos का ग्राफ जो है वो ऐसे जा रहा है, और जो साइन का ग्राफ है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। तो देखो, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पाई होता है, ठीक है, 0 पाई देन 2 पाई एंड सो ऑन। अब जब जो कॉस का ग्राफ जहां से पास हो रहा होता है, वहां पर बीच में π/2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 3 π/2 हो जाएगा एंड सो ऑन। अब उसने जो एरिया निकालने के लिए हमें कहा है, उसने 0 से 90 के बीच में ही बोला है, बस 0 से 90 के बीच में एरिया एनक्लोज बिटवीन द कर्व। तो उसने बोला है y एक्सिस, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, मतलब उसने ये वाला एरिया हमें निकालने के लिए कहा है 0 से π/2 के बीच में, बस उसने कोई और एरिया हमें कहा ही नहीं है निकालने के लिए। अब जैसे हमने सीखा है कि जहां पे कर्व्स मीट हो रहे होते हैं वहां से हमें ड्रॉ करना होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, जहां से कर्व्स मीट हो रहे हैं वहां से ड्रॉ करना होता है परपेंडिकुलर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम क्या करते हैं, जहां पे हमारे कर्व्स मीट हो रहे हैं वहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो परपेंडिकुलर कहीं तो मीट करेगा। अब ये समझने वाली बात है कि जो हमारा परपेंडिकुलर है, ये जो पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर हमारा मीट करेगा, इस पॉइंट को हम कहते हैं π/4। क्यों, अब वो समझिए, ये दो कर्व्स जहां मीट कर रहे हैं, अब हमें इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, दोनों ही y की वैल्यू है, दोनों ही को इक्वल रख सकते हैं, sin x इज इक्वल टू cos x,
और sin x इज इक्वल टू cos x एक ही कंडीशन में होता है जब x 45 होता है। तो यहाँ से इसलिए हमें समझ आ गया कि जो x की वैल्यू है पाई बाई 4,0 ये आ गया। अब हमें रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। बहुत सिंपल है इक्वेशन, कोई मुश्किल नहीं है। रिक्वायर्ड एरिया स्टार्ट हुआ 0 से, एंड हुआ पाई बाई 4 पे, ठीक है। अगर अब मैं इस टाइम पे मैं ये cos x की वैल्यू ले लेती हूँ, अगर सपोज मैं cos x इक्वेशन ले लेती हूँ cos ऑफ x, ठीक है, तो मेरे पास तो ये पूरा एरिया आ गया x एक्सिस तक, ये वाला एरिया पूरा आ गया। बट मुझे तो नहीं चाहिए, पूरा एरिया तो नहीं चाहिए। जो हमें नहीं चाहिए वो हम क्या कर देंगे, अब हमें कौन सा नहीं चाहिए, हमें जो ये कर्व साइन एक्स के कर्व के नीचे ये वाला पोर्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, ये पोर्शन हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम माइनस कर देते हैं। अगेन लिमिट 0 से पाई बाई 4 ले लेते हैं एंड वी टेक एज साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो हमें एक चीज तो ये समझनी है कि जो साइन एक्स का ग्राफ है वो जाएगा एक्स एक्सिस से, और जो cos x का ग्राफ है वो 0 और 1 से पास होता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू cos x। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब उसके बाद तो हम सॉल्व कर लेंगे। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाई 4। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाई 4। अब इसको सॉल्व करने की बारी आती है। साइन पाई बाई 4 माइनस साइन 0, साइन पाई बाई 4 होता है 1 अपॉन रूट 2, साइन 0 0 होता है, प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस 0, कॉस पाई बाई 4 होता है 1 अपॉन रूट 2 माइनस कॉस 0, माइनस ये 1 हो गया, ठीक है। सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा दैट वी हैव टू सी, इट विल बी 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 इज 2 अपॉन रूट 2, जिसे हम रूट 2 कह सकते हैं, ठीक है। बिकॉज 1 अपॉन टू अपॉन रूट 2 हो गया, माइनस 1 हो गया। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे दिस इज रूट 2 माइनस 1 यूनिट्स। अब ये बात तो आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है कि जो 2 है वो रूट 2 का स्क्वायर है अपॉन रूट 2, और ये कैंसिल हो गया, दैट इज व्हाई इट बिकम only root 2. So this is the answer. If you like the video, please share with your friends and subscribe my channel so that you cannot miss the upcoming videos. For other videos, refer to the playlist of the channels.